Hello everyone. In this video, I'm going to explain numericals of chapter 9 force and laws of motion. In my previous video, I have explained the theory, the three laws of motion and conservation of momentum. Now, before starting to solve the numericals, I would like to first write down all the formulas which we are going to use in this chapter. This formula you have learned in this chapter only. First formula, momentum, P is equal to mass into velocity. Force, F is from Newton's second law, F is equal to ma, where acceleration A is equal to v minus u upon t. V is the final velocity, u is the initial velocity, t is the time. And the Newton's second law also says that force is equal to the rate of change of momentum. That means final momentum minus initial momentum upon time, mv minus mu upon t. So we can use this formula also, we can use this formula also. And along with this formula, we have to keep remembering these three equations of motion, that is v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, and 2as is equal to v square minus u square. And one more equation is conservation of momentum, that is maua plus mbub is equal to mava plus mbvb. So these formulas you have to remember. Listen, it's easy to remember. देखो f के मैंने दो फार्मूलाज लिखे हैं, f इजकल टू एम ए एंड f इजकल टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टी. अगर आप a की वैल्यू यहाँ पे v माइनस यू अपॉन टी करोगे तो ये चीज़ आ जाएगा यहाँ पे. सो दिस टू फार्मूलाज आर सेम. Now, I explain the given questions, solved examples also. In my previous video, I have told you all to go through the examples 9.1 to 9.5, and if you have doubt, then you discuss with me. Now, I start from 9.6, and if you have doubt in those examples also, we will discuss in the online class. Now, one thing always remember, before solving any numerical, first thing you have to write what are given. So example 6 में पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ. A bullet of mass 20 gram is horizontally fired with a velocity 150 meter per second from a pistol of mass 2 kg. What is the recoil velocity of the pistol? देखो एक सिंपल से एग्जाम्पल. आप सोचोगे मैम ना हर चीज़ को, पेन को भी गन बना लेती है. सपोज ये मेरा गन है, डोंट लाफ, दिस इज़ गन, और ये हमारा बुलेट है और ये गन है. तो जैसे फायर किया, ट्रिगर दबाया, बुलेट आगे गया, तो बुलेट नहीं, और बुलेट आगे गया जिस फोर्स से, उतना ही फोर्स गन पे लगा और गन पीछे की तरफ आया. तो क्या क्या गिवन है यहाँ पे? यहाँ पे बुलेट का मास दिया हुआ है, गन का मास दिया हुआ है, पिस्टल का, सॉरी गन है, गन नहीं पिस्टल है, पिस्टल का मास दिया हुआ है, एंड स्पीड ऑफ बुलेट दिया हुआ है कि किस स्पीड से निकला. देखो बिफोर कॉलिजन जब दोनों पे फोर्स नहीं लगा, दोनों रेस्ट पे था, तो इसकी इनिशियल स्पीड 0 थी और इसकी इनिशियल स्पीड 0 थी. फाइनल स्पीड इसकी गिवन है 150 मीटर पर सेकेंड, हमें इसकी फाइनल स्पीड निकालनी है. तो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन वाला, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे. इसको ए मान लो आपका बुलेट है और बी जो है वो पिस्टल है, तो ए बी कर सकते हो आप, 1 2 लिख सकते हो, या बी बुलेट के लिए बी और पिस्टल के लिए पी लिख सकते हो. पहले जो गिवन है वो मैं लिखती हूँ. गिवन क्या है? मास ऑफ बुलेट दिया हुआ है, मास ऑफ बुलेट, बुलेट को मैंने ए ले लिया सपोज, या 1 ले लेते. मास ऑफ बुलेट मैंने m1 लिखा. ये कितना दिया हुआ है? 20 ग्राम. नाउ ग्राम में है, we need to change it into kg, to 20 by 1000 kg. now pistol, mass of pistol दिया हुआ है, this is m2 मैंने लिया, ये गिवन है 2 kg. ऑलरेडी kg में तो हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है. u1 एंड u2 इनिशियल स्पीड ऑफ बुलेट, u1 ये 0 दिया हुआ है, इनिशियल स्पीड ऑफ पिस्टल दोनों रेस्ट पे है, u2 ये भी 0 है.
देन फाइनल स्पीड ऑफ बुलेट दैट इज v1, ये हमारा दिया हुआ है कितना 150 मीटर पर सेकेंड. एंड फाइनल स्पीड ऑफ पिस्टल, दिस वी हैव टू फाइंड v2 इज इक्वल टू वॉट, ये हमें निकालना है. देखो मैंने ए बी के टर्म में यहाँ लिखा था बॉल वाला एग्जांपल, आप यहाँ पे m1 u1 प्लस m2 u2 विल बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. ये एक जनरल फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में. सो यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन राइट, आप लिखोगे फ्रॉम लॉ ऑफ conservation, every question you have to write from law of conservation of momenta. ये इक्वेशन हर एक में लिखोगे m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू m1 एंड u1 जीरो है तो m1 इंटू ज़ीरो करेंगे, ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, प्लस m2 हमारा 2 kg है और u2 हमारा ज़ीरो है तो ये भी हमारा ज़ीरो हो जाएगा. नाउ m1 कितना दिया हुआ है 220/1000 और v1 कितना है 150 प्लस m2 कितना है, m2 इज़ गिवन 2 kg एंड v2 यू हैव टू फाइंड आउट. ये दोनों तो ज़ीरो हो गया, 0 + 0 इज़ 0, ये कैंसिल करो आप, 15 2 ज़ा 30/10 यानी कि 3 प्लस 2v2, ये भी कैंसिल. सो 0 इज इक्वल टू 3 + 2v2, इधर ले आओ उल्टा कर दो, 2v2 + 3 इज इक्वल टू 0, 2v2 इज इक्वल टू -3, v2 इज इक्वल टू -3/2 दैट इज -1.5. और ये स्पीड की बात कर रहे हैं तो मीटर पर सेकेंड. देयरफॉर recoil speed of the pistol will be -1.5 meter per second. The negative sign here says that the speed of pistol is opposite to the speed of the bullet. अगर बुलेट इधर गया तो पिस्टल इधर आया है. So this is your value. Next question. Next question is a girl of mass 40 kg jumps with a horizontal velocity 5 meter per second onto a stationary cart with frictionless wheels. ये एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे देखो, एक लड़की है जिसका मास दिया हुआ 40 kg, वो 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फ्रिक्शनलेस कार्ट पे जंप करती है. कार्ट का मास दिया हुआ 3 kg. नाउ व्हाट इज़ हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट मूविंग, ये इस पे आई और कार्ट इधर मूव करना शुरू हो गया. तो अब क्या स्पीड होगा दोनों का कंबाइन, क्योंकि ये इसके ऊपर है तो दोनों की सेम स्पीड होगी. नो, जो गिवन है पहले मैं वो लिखती हूँ. एग्जाम्पल 9.7, ये ऑलरेडी सॉल्व है बट मैं बता रही हूँ आपको सो दैट आप इसे और अच्छे से समझ सको. क्या क्या है पहले तो गर्ल को हम 1 2 ऐसे करके ले लेते हैं. गर्ल सपोज 1 है और कार्ट जो है वो 2 है. मास ऑफ गर्ल, मास गिवन, सबसे पहले जो गिवन है वो आप लिखोगे. मास ऑफ गर्ल, इसको मैंने m1 लिया, ये दिया हुआ है 40 kg. मास ऑफ कार्ट, दिस इज m2 एंड ये दिया हुआ है 3 kg. इनिशियल स्पीड ऑफ गर्ल, अब मैं उतना नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि अभी मैंने वैसे ही एक्सप्लेन किया, तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो. u1 क्या है, इनिशियल स्पीड ऑफ गर्ल, ये कितना है 5 मीटर पर सेकेंड. u2 क्या है, इनिशियल स्पीड ऑफ कार्ट जो कि स्टेशनरी है तो 0 मीटर पर सेकेंड. v1 स्पीड ऑफ गर्ल इज इक्वल टू स्पीड ऑफ कार्ट, क्योंकि दोनों सेम है तो v1 इज इक्वल टू v2 और इसको मैंने v ले लिया. स्पीड ऑफ या वेलोसिटी ऑफ गर्ल एंड कार्ट दोनों एक ही जगह पे हैं एंड कार्ट. नाउ
according to law of conservation of momentum, according to law of conservation of momentum, क्या है हमारा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, और v1 v2 क्या है, v है हमारा, दोनों सेम है, सो m1 v प्लस m2 v हम लिख सकते हैं, v1 की जगह v, v2 की जगह v, क्योंकि v1 इजकल टू v2 इजकल टू v, और वी कैन राइट हियर m1 प्लस m2 और v कॉमन ले लो, v कॉमन ले लिया तो क्या बचा m1 प्लस m2. नाउ कंटिन्यू. प्रीवियस स्टेप हमारा क्या था, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v, ये हमें v निकालना है. ना m1 u1, अब सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. m1 जो कि गर्ल का मास था वो हमारा 40 था, स्पीड दी हुई थी 5, प्लस m2 हमारा 3 था, लेकिन जो काट था वो रेस्ट पे था, तो ये हमारा 0 हो जाएगा u2. m1 हमारा 40 प्लस ये 3 इंटू v, 40 इंटू 5 200 प्लस 0 इज इक्वल टू 43v, और we can write 43v is equal to 200. So v will be equal to 200 upon 43 and v will be equal to 4.65 मीटर पर सेकेंड. ये पॉजिटिव साइन मीन्स जिस डायरेक्शन में गर्ल मूव कर रही थी उसी डायरेक्शन में काट और गर्ल भी मूव कर रहा है, पॉजिटिव है. अगर नेगेटिव होता तो अपोजिट डायरेक्शन होता. So you understood this. Last question example 9.8 मैं आप लोगों पे छोड़ देती हूँ, ये आप एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो करोगे. Now I'm discussing the blue box question. Now I'm going to explain blue box question, page number 126. First question is, if action is always equal to the reaction, explain how a horse can pull a cart. Again, from Newton's third law we know that the action is always equal to the reaction. Now when a horse pull a cart, suppose कि ये मेरा कार्ट है और ये हॉर्स है, तो हॉर्स अगर कार्ट को पुल करना चाह रहा है, what he does, he actually प्रेसेस हिज फुट बैकवर्ड डायरेक्शन, वो ऐसे फोर्स लगाता है अपने फुट से, फिट से, और बिकॉज फोर्सेस आर इक्वल इन अपोजिट, तो ग्राउंड भी हॉर्स पे उतना ही फोर्स लगाएगा जिसकी वजह से हॉर्स ये आगे बढ़ेगा, और जैसे ये आगे बढ़ेगा इसके साथ ये कार्ट अटैच्ड है तो ये कार्ट भी आगे बढ़ेगा. इसमें दिया हुआ कि एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन. येस, बट ये जो एक्शन एंड रिएक्शन है वो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे एक्सर्ट हो रहे हैं, एंड सो दे डू नॉट कैंसिल ईच अदर. आई हैव एक्सप्लेन दिस अर्लियर ऑल्सो. एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल बट दे डू नॉट कैंसिल ईच अदर बिकॉज they act on two different objects. So when the horse has to pull the cart, the horse applies force on the ground in backward direction, and because of that force the earth exerts equal and opposite force on the horse, and this force is, because of this force horse moved forward along with the cart. Second question, explain why is it difficult for a fireman to hold a horse which ejects large amount of water at high velocity. ये एक हॉर्स है, आई डोंट नो, मैं अपने पेन को क्या क्या बना देती हूँ. सो सपोज ये एक हॉर्स है और इसमें से बहुत हाई स्पीड से वाटर निकल रहा है. नाउ अगर वाटर यहाँ से इजेक्ट हो रहा है हाई स्पीड से, वाटर पे फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से वो इजेक्ट हो रहा है, तो सेम फोर्स, उतना ही ज़्यादा फोर्स वाटर इस हॉर्स पे लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, और बिकॉज ऑफ दैट फोर्स द हॉर्स वुड लाइक टू मूव बैकवर्ड. सो दैट्स वाई वी नीड और अ पर्सन और इट इज़ डिफिकल्ट टू होल्ड द हॉर्स which is ejecting large amount of water with high velocity. Question number 3. This is a numerical, so I have to do it on my notebook.
This example I have left for you. Page number 126, BBQs और in text question, blue box question, question number 3. सबसे पहले मैंने क्या बोला है, जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे तो जो गिवन है वो लिखोगे. तो गिवन क्या है, फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास 4 kg, मास ऑफ राइफल दिया हुआ है. अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड. तो सपोज मास ऑफ बुलेट, इसको मैंने m1 लिया, ये दिया हुआ है 50 ग्राम. नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम ग्राम को kg में कन्वर्ट करेंगे और उसके लिए 1000 से डिवाइड करो. मास ऑफ राइफल, उसको मैंने ले लिया, मास ऑफ राइफल that is m2 and it is given 4 kg. Bullet is fired with an initial velocity of 35 मीटर पर सेकेंड. तो बुलेट का जो स्पीड है, देखो दोनों पहले रेस्ट में थे, फिर से ये वापस मेरा पेन बन गया, राइफल एंड बुलेट. इनिशियली दोनों रेस्ट में थे, जैसे ट्रिगर दबा तो बुलेट पे फोर्स लगा और बुलेट मूव किया इनिशियल स्पीड से. तो वो स्पीड दी हुई है कितनी, 35 मीटर पर सेकेंड. लेकिन इनिशियल स्पीड तो दिया है, बाद में उसकी स्पीड कम होती जाएगी, बट एक्चुअली ये उसका u2 लेंगे क्योंकि इनिशियल दोनों रेस्ट पे है. तो u1 दैट इज स्पीड ऑफ बुलेट, ये हमारा 0 है क्योंकि वो रेस्ट पे था. u2 स्पीड ऑफ राइफल, दिस इज ऑल्सो 0, दोनों रेस्ट पे थे. एंड v1 स्पीड ऑफ बुलेट आफ्टर फायरिंग, या इसको फाइनल स्पीड बोलेंगे, ये दिया हुआ है 35 मीटर पर सेकेंड. देखो क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, बट एक्चुअली हम यहाँ पे v1 लेंगे आफ्टर कॉलिजन वाली चीज़, v1. एंड v2 जो कि रिक्वायर्ड स्पीड है हमारा राइफल का, रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ राइफल, ये हमें निकालना है कितना है. अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन से हम क्या करेंगे, विल यूज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन from law of conservation of momentum, we know m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. Whenever I teach this chapter in the class, generally children say, ma'am, don't want to write the equation again and again, but बच्चे लोग you need to practice this equation. जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला, आपको ये इक्वेशंस लिखना ही है ना. m1 u1 u2 तो 0 ही है, दोनों का इनिशियल, तो मैं डायरेक्टली 0 कर देती हूँ. m1 कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 50/1000, और v1 कितना है 35, प्लस m2 कितना दिया हुआ है 4 kg, एंड v2 वी हैव टू फाइंड आउट. तो ये 0 कैंसिल, 0 इज इक्वल टू 35 इंटू 5, 5 5 is 25, 2 5 3 is 15, 2 17/100 plus 4v, or we can write 4v is equal to 4v, एक स्टेप और करती हूँ, 1 plus 175/100 is equal to 0. This gives 4v is equal to माइनस, इसको इधर लिया 175/100, and this gives v is equal to minus 175/100 इंटू 4. ये 4 नीचे आ जाएगा. अब आप कट कर दो तो ये 425 से कट करो, 437. सो v इज इक्वल टू 7/4, 4 जा 16 विथ निगेटिव साइन. इसको आप डेसिमल में भी निकाल सकते हो, मैं यहाँ पे छोड़ रही हूँ मीटर पर सेकेंड. निगेटिव साइन शोज दैट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी इज अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ बुलेट. ना क्वेश्चन नंबर 4, कहीं पे ये सारे न्यूमेरिकल्स बच्चे आप लोगों को देखना है, कहीं पे कोई भी डाउट हो तो आप पूछोगे क्लास में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 2 ऑब्जेक्ट्स, मैं यहाँ पे रख रही हूँ,
टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस 100 ग्राम एंड 200 ग्राम, दोनों ग्राम में दिए हुए हैं, तो हमें कन्वर्ट करना है केजी में। आर मूविंग अलॉन्ग द सेम लाइन एंड डायरेक्शन विथ वेलोसिटीज दिस एंड दिस। दे कोलाइड, दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों मूव कर रहे हैं, दोनों का अलग अलग मास है, दोनों का अलग अलग स्पीड है, दोनों कोलाइड करते हैं। आफ्टर द कॉलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स एट इज वेलोसिटी ऑफ दिस, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1 है, m2 है, u1 है, u2 है, v1 है, v2 निकालना है। मैं ये क्वेश्चन भी कर देती हूँ, बाकी आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगी जो आप करोगे। क्वेश्चन 4 मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ जो गिवन है। गिवन m1 100 ग्राम, दिस इज 100/1000 दैट इज 0.1 kg, या आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। m2 कितना दिया हुआ है 200 ग्राम 200/1000 kg। u1 2 मीटर पर सेकेंड, u2 1 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट ऑब्जेक्ट v1 दिया हुआ है 1.67 मीटर पर सेकेंड, v2 हमें निकालना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हमें क्या पता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. Substitute the value. m1 हमारा था 100/1000 इंटू u1 है हमारा 2 प्लस m1 u1 m2 u2, m2 कितना है 200/1000 इंटू u2 है हमारा 1 इज इक्वल टू m1 इंटू 1.67 प्लस m2 v2, m2 हमारा 200/1000 इंटू v2 जो हमें निकालना है। अब आप कर लो, दिस इज 2/10 प्लस 2/10 is equal to 120 cancel, 1.67/10 plus 120 cancel, 2v2/10। सबको इधर ले आओ, ये कर लिया हमने 10, 4/10 is equal to रहने देते हैं 1.67/10 प्लस v2/5, ये चलो मैंने कट कर दिया। अब इसको इधर ले आओ, v2/5 प्लस 1.67/10 इज इक्वल टू 4/10, v2/5 इज इक्वल टू 4/10 माइनस 1.67/10, v2/5 इज इक्वल टू ये 10, 4 माइनस 1.67 यानी कितना हो गया ये 2.67 v2 is equal to 2.33/10 इंटू ये 5 ऊपर चला गया, ये 2, दिस इज v2 is equal to 2.33/2। अगर आप डिवाइड कर दो तो ये 1.33 16 to the 16 approximate meter per second. So this is the velocity of the second object. So देखो बाकी तो पूरा मैथ्स है ना, यू कैन सी। ये नोटबुक देख के ऐसा नहीं लग रहा, ये पेज देख के ये मैथ्स हम कुछ कर रहे हैं, बट वी आर डूइंग फिजिक्स। सो एक्चुअली व्हाट वी से मैथ्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। जब भी हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो मैथ्स को नहीं छोड़ सकते। सो ट्राई व्हाट यू विल डू, you will first go through this video and then do all these questions by yourself। वीडियो को बंद कर दो और खुद से ये प्रैक्टिस करो, डोंट कॉपी दिस। ये मैंने सॉल्व किया है सो दैट आप इसे अच्छे से समझ सको। एक बार समझ लो, उसके बाद खुद से ये सारी क्वेश्चंस करो, देन ओनली यू विल गेन कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ओके, सो ऑल दिस in this chapter
In my next video I will explain the exercise question, जो भी न्यूमेरिकल्स हैं या थ्योरी क्वेश्चंस. आई थिंक एक्सरसाइज में सारे न्यूमेरिकल्स हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ऑलमोस्ट नहीं के बराबर हैं. तो दैट आई विल डू. देयर आर अराउंड 17 or 18 questions that I will do in my next video. Till that, thank you.